Good morning, friends. Today we are going to start the next topic in our course, that is gasoline engine operation. Gasoline engine operation, how the gasoline engine operates. So first of all, what is gasoline engine? The engine which operates on the petrol fuel, we call it gasoline engine. Now see here, what happens practically I would like to tell. Whenever we want to determine the pollutants from engine, what are the different types of pollutants from a particular engine, then we have to understood the operation of these engines, how these engines operates, what are the different factors which affects the pollutants from this gasoline engine. Okay. Now these are the objectives. Now what is the first objective? The first objective is discuss how a compression ratio is calculated. So this compression ratio is a very important term in case of engines. For petrol engines, the compression ratio is between 8 to 10, but in diesel engines, the compression ratio varies between 16 to 22. So next one is explain how engine size is determined. Engine size means what? What is the cc of the engine? Okay, which are the factors which are responsible in determining the cc of the engine? Next is describe how turbocharging or supercharging increases the engine power. Now this turbocharged engines, supercharged engines. Okay, so this is turbocharging is a one particular mechanism which is implemented in automobiles in order to increase the power output from engine. Then next is how engine converts part of fuel energy to useful power. This process helps us. This process is a very important process. The conversion of fuel energy into usable power. This is done by this engine. Okay. Next is discuss how this power is used to move the vehicle. Okay. Now we know there are different, we can say gears, transmission equipments, transmission lines, drive lines, differential. Okay. These things you have studied in course of basic automobile systems. Now in this we are going to see how the power output from the engine is used for propelling the vehicles. Now the key terms. The key terms in this are lock, bore, boxer. Now these are related with the engine, cam block design, camshaft, combustion, combustion chamber, compression ratio, connecting rod, crankshaft, cycle, cylinder. So these are the terms we can say these are related with again engine. Okay, so which engine parameters are going to affect are determined by these terms. Next one is a displacement, double overhead camshaft, we call it DOSC, exhaust valve, external combustion engine, very interesting thing. So we know internal combustion engine, but what is the external combustion engine that we are going to see? We are going to see the four-stroke cycle, the internal combustion engine, mechanical force, mechanical power. Next is what are the natural aspirated engines, non-principal end, oil galleries, pancake, piston stroke, principal end, push rod engine, rotary engine, single overhead camshaft, SOSC, stroke, supercharger, top dead center, TDC, turbocharger, and Wankel engine. These are the important terms which are very much necessary for us
to understand the behavior of the combustion in particular engine, and this behavior of combustion in particular engine is very much necessary for us in determining the different types of pollutants which are exhausted into our atmosphere from the engine. Now, first important thing is energy and power. These two are similar words, but there is a huge difference. Okay, so what we have to understand this concept, that energy is used to produce power. So this one is a very important statement. Okay, so if somebody asks you what is the difference between energy and power, simple answer is energy is necessary for producing power. Now, next important thing is the fuel. The fuel is used for combustion. And during the combustion, the chemical energy of fuel is converted into heat by burning the fuel at a controlled rate. Why controlled rate? Because we require energy in controlled rate. Spontaneous combustion will lead to a large loss of power, or we can say the power will not be utilized in the proper fashion by the uncontrolled combustion. Therefore, the combustion in the controlled rate is always necessary for burning the fuel and producing the heat, okay, which we convert the chemical energy into heat energy. And the process by which the fuel is burned, chemical energy is converted into heat energy. This process we call as a combustion. Okay. If these combustions occur in the power chamber, okay, we call it as an internal combustion engine. Okay. Now, engines used in automobiles are internal combustion engine that we also call as a heat engines. They convert chemical energy of gasoline into heat within the power chamber, that is called as a combustion chamber. Okay. Now, next is the heat in the combustion chamber raises the temperature of gases in that combustion chamber. So you know that there is a this one is your combustion chamber, and here is your piston. This is your piston, and here we can say there is an intake valve, there is an outlet valve, from which there is a, we can say there is a fuel inlet. Okay, then there is spark, and due to the spark, this mixture of fuel and air gets ignited, and the region where this fuel and air, where it gets ignited, we call it as a combustion chamber. Okay, now what happens after the combustion? After the combustion, there is a increase in temperature and pressure inside this combustion chamber. Now this causes this piston to move down, which exerts this pressure on this piston, and the piston comes down. Okay, now the pressure developed within this chamber is applied to head of the piston or turbine wheel to produce a mechanical force. Now there is a generation of this force. Okay, now which is converted into useful mechanical power. This mechanical force is converted into mechanical power with help of certain linkages, or we can say certain mechanism that we call as a crankshaft mechanism. Now, important thing which I will like to tell you is that what is the external combustion engine? Now, the external combustion engine is the engine in which the combustion takes outside of the engine, such as steam engine is the external combustion engine. Now, what are the different engine components, or we can say the engine construction? First of all is the block. All automotive and truck engines are constructed using a solid frame, which we call as a block. A block is constructed of cast iron or aluminum and provides foundation for most of the engine components and system.
Now this is necessary, this block is necessary for the foundation. Okay, it is necessary for the strength of the engine. Okay, now the block is of cast, means the block is produced by the casting process. The casting is one type of a manufacturing process. From this manufacturing process, we can produce the castings. Okay, we can produce the components such as the exhaust pipes of the engines, from which the combustion gases are taken out. Then we make cylinder head, cylinder block. Okay, now this block are then machined to very close tolerances. Means what happens whenever something is produced by the casting. Okay, the casting components are not made of the same size of that of a product, because casting is a primary process. After casting, there is a secondary process, manufacturing process, that is a machining process. The machining process makes the cast components into their final sizes. Okay, so they are using the word as a close tolerances, means they are making the size very accurate size. Close tolerance indicate the component is made of a very accurate size, so that the other parts can be properly installed. Okay, means there is assembly, so all the different components could be assembled in a proper manner. That is why they are providing the very close tolerance, means actual size of that components. Now the next important part is rotating assembly. What is meant by rotating assembly? Okay, now see here, piston. Have you seen the piston? Okay, you see, you can get the piston diagram from the internet or from your mobile phones. You can go in Google, you can search what is piston, and you can get the pistons. Pistons are installed in block and they move up and down during engine operations. Now piston is nothing but it is the moving component. It moves inside combustion chamber. Pistons are connected to the connecting rods, which connects the piston to the crankshafts. Now, with help of this connecting rod, the piston is connected to the crankshaft. The crankshaft converts up and down motion of piston to rotary motion, which is transmitted to drive wheels and propel the vehicle. So we can see the figure. Next, there is a figure. See here, this one is the figure. Now see here, this one is a V type of engine. In this V type of engine, these are the pistons. Okay. Now in these pistons, these are connect. This one is your connecting rod, and here connecting rod connects the piston to the crankshaft. Okay. This you can see, this one is the crankshaft. Okay. So this one is, we call it a rotating assembly. Now cylinder head. Okay. The cylinder head is on top of that cylinder block. Okay, the block के ऊपर का पोर्शन हम उसको बोलते हैं सिलेंडर हेड. सिलेंडर हेड में जो इनलेट वॉल, आउटलेट वॉल, जो आपने स्पार्क प्लग, फ्यूल इंजेक्टर्स, ये सब का वहां पे अरेंजमेंट होता है. ये देखो, ये दिस वन इज द सिलेंडर हेड. ये सिलेंडर में देखो, ये जो आपको ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है, this portion which you are seeing here, this is nothing but this portion. These are nothing but for the walls. This arrangement is made for the walls. Okay. Now here, what does the figure says? A cylinder head with 4 walls per cylinder. ये इसमें कितना है? ये 4 सिलेंडर का हेड है. तो इसमें कितना है? हर एक में 1, 2, 3, 4 ऐसे 4 वॉल्स है.
विच मीन्स उसमें से 2 इनटेक वॉल है लार्जर एंड 2 एग्जॉस्ट वॉल स्मॉलर पर सिलेंडर। ये जो इनटेक वॉल होता है ना उसका साइज बड़ा होता है एज कम्पेयर टू एग्जॉस्ट वॉल। ठीक है, तो ऐसे इसमें वॉल्स का प्रोविजन अपने को सिलेंडर हेड में अपने को दिया होता है। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पर भी कूलिंग पैसेज मतलब जो अपना कूलिंग ऑयल है, कूलिंग ऑयल क्यों यूज करते हैं हम, या कैसे कूलेंट हम यूज करते हैं इंजन को कूल करने के लिए। तो वो कूलेंट पास होने के लिए उसमें क्या होना चाहिए, उसमें ऐसे पैसेज होना चाहिए। वो कूलेंट वो पैसेज में से जाएगा, जैसे वो पैसेज में से जाएगा वो जो हीट जनरेट हुआ है एक्सेस हीट, ठीक है, वो एक्सेस हीट वो कैरी करेगा। वो एक्सेस हीट क्यों करना है, कैरी करना है, क्योंकि अगर अपना इंजन का टेम्परेचर ज्यादा बढ़ गया तो अपने इंजन के कंपोनेंट्स को डैमेज होने का काफी चांसेस है। इसीलिए अपने को ये हीट कैरी आउट करना होता है टू प्रोटेक्ट आवर इंजन। तो इसीलिए उसमें ऐसे पैसेज का भी अरेंजमेंट होता है। ठीक है, देन इनटेक एंड एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड्स, air and fuel enters the engine through the intake manifold. Intake manifold से हम बोलते हैं the charge is taken inside this engine or from the intake manifold and exits through the exhaust manifold. Okay, exhaust manifold से अपना वो बाहर जाता है। The intake manifold operate cooler than exhaust manifolds and are therefore constructed of नायलॉन रीइंफोर्स प्लास्टिक और एल्यूमिनियम। जो हीट होगा, जो हीट इनटेक मैनिफोल्ड के एरिया के पास रहेगा वो हीट ज्यादा नहीं रहेगा एज कम्पेयर टू एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड्स। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उसको जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक का क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट काफी कम होता है, तो वहां पे ज्यादा हीट नहीं है, इसीलिए हम जो प्लास्टिक है फाइबर रीइंफोर्स प्लास्टिक वो इस केस में हम यूज कर सकते हैं। द एग्जॉस्ट गैस, एग्जॉस्ट गैस में अलग ये है मैटर है, क्योंकि एग्जॉस्ट गैस में क्या होता है, जो हीट है, हीट मतलब जो गैसेस है, कंबशन गैसेस है ना, उनका टेम्परेचर काफी हाई है और इस हाई टेम्परेचर एग्जॉस्ट गैसेस को अपने को एग्जॉस्ट सिस्टम से अपने को बाहर निकालना है। तो ये जो सिस्टम है ना वो ये सिस्टम हाई टेम्परेचर उसमें विस्टैंड करना चाहिए। ठीक है, हाई टेम्परेचर विस्टैंड होने के लिए उसको हम हाई मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल के हिसाब से उसको बनाते हैं। तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, वी आर मेकिंग द यूज ऑफ कास्ट आयरन। कास्ट आयरन कैसा है, कास्ट आयरन का मेल्टिंग पॉइंट प्लास्टिक से ज्यादा है। अगर हम इसको यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो कास्ट आयरन की वजह से उसका मटेरियल को मेल्ट नहीं हो पाएगा, उसका वो टेम्परेचर सस्टेन कर पाएगा। ठीक है, now the next important thing is the cooling systems. Okay, all the engines must have a proper cooling system to control the engine temperature. जैसे मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर बढ़ गया तो कुछ कुछ मटेरियल का एक टेम्परेचर सस्टेन करने का कैपेसिटी होता है, वो कैपेसिटी के ऊपर अपना टेम्परेचर गया तो वो मटेरियल डैमेज होने का काफी सारा चांसेस है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए कि ये जो कट सेक्शन मॉडल है, ये कट सेक्शन मॉडल का फोटो है, जहां पर भी आपने को ये दिखाई देता है ना, दिस वन इज द वी कैन से ग्रीन लाइन। तो ग्रीन लाइन में से क्या फ्लो हो रहा है, ग्रीन लाइन में से अपना कूलेंट फ्लो होता है। तो ये थर्मोस्टैट है। थर्मोस्टैट कैसा होता है, टेम्परेचर मॉनिटर करके अपना फ्लो उसमें बढ़ाता है। ठीक है, तो थर्मोस्टैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका थर्मोस्टैट अगर आपका डैमेज हो गया है तो आपका कूलिंग सिस्टम का जो कूलिंग है वो कूलिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो नेक्स्ट इज द लुब्रिकेशन सिस्टम। तो यहाँ पर ये अपना वी टाइप इंजन है। तो वी टाइप इंजन में ये ऐसे पैसेजेस है, ये पैसेज में से अपना ये ऐसा ऑयल सम्प है, यहाँ से ये ऑयल सम्प यहाँ पर से ऊपर आएगा। ठीक है, फिर ये ऑयल सम्प में से ये अपना ऑयल फिल्टर में जाएगा। ठीक है, ऑयल फिल्टर में से ये क्या करेगा, ऑयल फिल्टर जो डर्ट पार्टिकल्स है वो डर्ट पार्टिकल्स को फिल्टर करके जो अच्छा ऑयल है वो अच्छा ऑयल आगे सेंड करेगा। ठीक है, फिर ये अच्छा ऑयल क्या जाएगा, यहाँ से यहाँ पर कुछ जाएगा, कुछ ऊपर जाएगा। ठीक है, जहां जहां पर भी लुब्रिकेशन का जरूरत है, जैसे कि ये जो अपना इनलेट वाल्व है,
ये दो इनलेट वाल्स की तरह वहां पे वो ये करेगा, लुब्रिकेशन करेगा। फिर वो ऐसा लुब्रिकेशन करके साइकिल कंप्लीट करके फिर से यहाँ से आएगा और ये नीचे आपने इसमें पड़ेगा। तो इसमें कहाँ कहाँ पे लुब्रिकेशन है, ये जो पिस्टन और सिलेंडर जहां पर भी इसका फ्रिक्शन होता है तो वहां पर एक ऑयल का परत बना देता है, जिसके वजह से क्या होता है, अपना फ्रिक्शन कम से कम हो जाता है। फ्रिक्शन कम होगा तो आपने को क्या मिलेगा, आपने को माइलेज अच्छा बढ़ेगा, आपने को स्मूथ ऑपरेशन मिलेगा अपने गाड़ी का। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ दिस लुब्रिकेशन सिस्टम। तो यहाँ पर लुब्रिकेशन सिस्टम देखिए, नीचे ऑयल पैन है, यहाँ पे ऑयल पंप है, ऑयल फिल्टर है एंड इसमें ऑयल पैसेजेस है। ठीक है, so these are the important parts of a lubrication system. Now here the oil is forced up to the walls and it falls through the openings in cylinder head and block to the oil pan. तो जो सिलेंडर हेड है, सिलेंडर हेड में यहाँ पे ये ऊपर से सिलेंडर हेड में से नीचे आ जाता है, जिसके वजह से वो सिलेंडर ब्लॉक पिस्टन के बाजू का जो सरफेस है उसको लुब्रिकेट करने का काम करेगा। Now next is the fuel system and ignition system. Okay, now see here what happens. फ्यूल सिस्टम, फ्यूल सिस्टम बोले तो कौन सा सिस्टम जहाँ से फ्यूल अपने इंजन में आ जाएगा। इग्निशन सिस्टम जो ये फ्यूल को इग्नाइट करेगा। ठीक है, सो ऑल इंजन रिक्वायर द फ्यूल एंड इग्निशन सिस्टम टू इग्नाइट द एयर फ्यूल एयर मिक्सचर इन द सिलेंडर्स। अभी इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स है, इसमें है फ्यूल टैंक, फ्यूल टैंक में से फ्यूल स्टोर करने का काम होता है। फ्यूल फिल्टर एंड फ्यूल लाइन्स। फ्यूल फिल्टर क्या करेगा, फ्यूल में से जो डर्ट पार्टिकल्स है उनको फिल्टर करके आगे अच्छा फ्यूल सेंड करने का काम करेगा। उसके बाद है ये फ्यूल इंजेक्टर। ये फ्यूल इंजेक्टर काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ठीक है, फ्यूल इंजेक्टर का सबसे ज्यादा कॉस्ट होता है ऑटोमोबाइल के पार्ट्स में। वो उसका काम क्या है, वो स्प्रे द फ्यूल इनटू द इनटेक मैनिफोल्ड और डायरेक्टली इनटू द सिलेंडर, ये उसका काम है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है फ्यूल इंजेक्टर का। फ्यूल इंजेक्टर को प्रिसाइजली फ्यूल को सिलेंडर में डालने का इंपॉर्टेंट काम है। अगर ये नहीं हुआ तो इंजन का ऑपरेशन नहीं हो पाता। ये काफी टीडियस काम है। इसको जो काम करेगा इक्विपमेंट है उसका कॉस्ट भी काफी ज्यादा है। इसमें कुछ छेड़छाड़ हुआ तो अपने इंजन को काफी परेशानी आ जाता है। ठीक है, नाउ सी हियर इग्निशन सिस्टम है that is designed to take 12 volts from the battery and it converts into 5000 to 40000 volts। ये जो मैकेनिज्म है, मैंने पिछले जो कोर्स आपको पढ़ाया था इंजन इलेक्ट्रिकल सिस्टम, तो मैंने इसमें ये आपका कंसेप्ट क्लियर किया था। ठीक है, उसमें क्या क्या होता है, स्पार्क प्लग होता है, इग्निशन कॉइल होता है, इग्निशन कंट्रोल मॉड्यूल होता है, एसोसिएटेड वायरिंग होता है। ठीक है, अभी फोर स्ट्रोक इंजन ऑपरेशन यहाँ पर देखिए, मैं एक पिक्टोरियल डायग्राम की हेल्प से आपको मैं फोर स्ट्रोक इंजन ऑपरेशन आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, ये अपना पिस्टन है। ठीक है, यहाँ पर स्पार्क प्लग है, दिस वन इज द इनटेक मैनिफोल्ड, सॉरी दिस वन इज द इनटेक पोर्ट। ठीक है, इनटेक पोर्ट है, यहाँ पे एग्जॉस्ट पोर्ट है। ठीक है, इनटेक जब अपना ये सक्शन प्रोसेस होता है, सक्शन प्रोसेस बोले तो पिस्टन इज मूविंग फ्रॉम top dead center to the bottom dead center position। okay, at that time the intake valve is open और intake valve जब ओपन रहेगा तो एयर फ्यूल मिक्सचर सिस्टम में नीचे आ जाएगा। ठीक है, जैसे सिस्टम में एयर फ्यूल मिक्सचर आ जाता है, ठीक है, तब ये क्या हो जाता है, ये अपना इंटेक वाल्व क्लोज हो जाता है। इंटेक वाल्व क्लोज होने के बाद ये जो एयर फ्यूल मिक्सचर है ना, इसको पिस्टन जैसे नीचे से जब ऊपर जाता है तब इसको ये कॉम्प्रेस कर देता है। ठीक है, जब भी ये कॉम्प्रेस हो जाएगा फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये स्पार्क प्लग अपना ये पिस्टन टीडीसी के आने से पहले थोड़ा सा ये स्पार्क प्लग जो है ना अपना इग्नाइट हो जाएगा और एयर फ्यूल मिक्सचर का कंबशन हो जाएगा। और ये कंबशन होने की वजह से क्या हो जाएगा कि ये जो पिस्टन है, ये पिस्टन का पोजीशन नीचे आ जाएगा। ठीक है, नीचे जैसे आएगा, नीचे क्यों आएगा, क्योंकि जो कंबशन होने के बाद गैसेस प्रोड्यूस हो जाते हैं, वो गैसेस का प्रेशर काफी ज्यादा आता है। वो प्रेशर क्या करता है, ये पिस्टन को नीचे डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई करता है, जिसकी वजह से पिस्टन ऐसा नीचे आ जाता है। ठीक है, और ड्यूरिंग ये प्रोसेस में क्या होता है कि एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड ऑन द पिस्टन, और ये फोर्स जब पिस्टन को अप्लाई होता है ना, तो ये बाकी के 3 बार ये फोर्स के वजह से, ये इनर्शिया की वजह से
ये 3 बार स्ट्रोक होते हैं ऑटोमेटिक, ठीक है। तो ये इसमें पिस्टन को एनर्जी मिलता है, ये स्ट्रोक में पिस्टन को एनर्जी मिलता है, जिसकी वजह से पिस्टन का कंटिन्यूअस मूवमेंट रहता है, अप एंड डाउन कंटिन्यूअस मूवमेंट होता है। और ये कंटिन्यूअस मूवमेंट के साथ साथ ये ऊपर का इंटेक मैनिफोल्ड का भी प्रोसेस साइमल्टेनियसली होता है, इस वजह से अपने इंजन ऑपरेट होता है, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, जब भी हम इंजन स्टार्ट करते हैं, हम क्या करते हैं, इंजन को क्रैंक करते हैं, ये हम घुमाते हैं। ये घुमाने के बाद पिस्टन को ऊपर नीचे मूवमेंट होता है, साइमल्टेनियसली इनलेट व स्पार्क प्लग का मूवमेंट होता है, अपना इंजन स्टार्ट हो जाता है। और इंजन स्टार्ट होने के बाद, एक बार ये प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद अपना हम क्या करते हैं, क्रैंकिंग ऑपरेशन स्टॉप करते हैं और ये ऑटोमेटिक चलने लगता है। और ये क्या होता है इसमें, ये प्रोसेस में जब लास्ट में जो एग्जॉस्ट गैसेस है ना, जब पिस्टन नीचे से जब ऊपर आता है, तो ये एग्जॉस्ट गैसेस को यहाँ से बाहर निकालता है, ये वॉल ओपन हो जाता है और एग्जॉस्ट गैसेस यहाँ से बाहर चले जाते हैं। तो इस हिसाब से ये 4 स्ट्रोक कौन कौन से, फर्स्ट इज द इनटेक स्ट्रोक, सेकेंड इज द कॉम्प्रेशन स्ट्रोक, थर्ड इज द पावर स्ट्रोक एंड फोर्थ इज द एग्जॉस्ट स्ट्रोक। ये 4 स्ट्रोक ऐसे ऑपरेट हो जाते हैं, ठीक है। So here is the description of these 4 strokes. Now here we can see this one is the cut section of a particular engine. यहाँ पर देखिए इंजन को क्या किया हमने, बीच में से कट किया है, बीच के वजह से हम अंदर क्या है, अंदर की चीज जो है वो हम आसानी से देख पा सके। तो यहाँ पर देखिए ये पिस्टन है, ये कनेक्टिंग रॉड है, ये क्रैंकशाफ्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद ये इनलेट पोर्ट है, ये आउटलेट पोर्ट है, बीच में से क्या है, बीच में से अपना स्पार्क प्लग रहेगा या फ्यूल इंजेक्टर रहेगा, ठीक है। और इस हिसाब से आप देखो, ये दिस वन इज द ऑयल पंप, ठीक है, सॉरी ऑयल फिल्टर है ये डिफरेंट फ्यूल की लाइन, ऊपर फ्यूल की लाइन से, ऊपर का ये क्या है, सिलेंडर हेड है, ये सिलेंडर ब्लॉक है, ठीक है, ये पिस्टन है। तो दिस आर द इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ अ पर्टिकुलर इंजन। द 720 साइकिल, 720 साइकिल का सिग्निफिकेंस क्या है मालूम है क्या आपको, कि ईच साइकिल ऑफ इवेंट्स रिक्वायर्ड दैट इंजन एंड क्रैंकशाफ्ट मेक्स 2 कंप्लीट रिवॉल्यूशंस। मतलब कैसा होता है, वन, ये आपके 4 स्ट्रोक है, 4 स्ट्रोक बोले तो कैसा होता है कि 360 रिवॉल्यूशंस जो होते हैं ना, तो उसमें 2 स्ट्रोक होते हैं, पूरा ऐसा 180 डिग्री, 180 डिग्री जब मूवमेंट होता है, जब पिस्टन टीडीसी पोजीशन से बीडीसी पोजीशन में आता है ना, तब जो कनेक्टिंग रॉड आपने को क्रैंकशाफ्ट को लगाया है, तो क्रैंकशाफ्ट का 180 डिग्री मूवमेंट होता है एक स्ट्रोक में, दूसरे स्ट्रोक में अगेन 180, तीसरे स्ट्रोक में अगेन 180 और चौथे स्ट्रोक में अगेन 180। तो ऐसे 180 डिग्री के कितने स्ट्रोक होते हैं, ऐसे 180 डिग्री के 4 स्ट्रोक होते हैं। सो 180 into 4 gives you the 720. So this is the 720 degree cycle, 4 stroke cycle, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो कि इंजन के अलग अलग क्लासिफिकेशन है। यहाँ पर देखो जैसे इनलाइन इंजन है, इनलाइन इंजन में जो इनलाइन इंजन में जो पिस्टन होते हैं, तो पिस्टन को एक ही लाइन में हम उसको बिठाते हैं, जिसको हम बोलते हैं इनलाइन इंजन। तो इसमें 4 सिलेंडर रहेगा, 5 सिलेंडर रहेगा या 6 सिलेंडर इंजन रहेगा। नेक्स्ट इज द वी टाइप इंजन। वी टाइप इंजन में ऐसे वी में हम पिस्टन का पोजीशन रहता है। तो इनलाइन इंजन और वी टाइप इंजन में क्या होता है कि वी टाइप इंजन का एक खासियत होता है, वी टाइप इंजन इज डायनामिकली मोर स्टेबल एज कंपेयर टू इनलाइन इंजन। ये स्टेबिलिटी अच्छा प्रोवाइड करता है, इसके वजह से ये वी टाइप इंजन यहाँ पे हमने यूज किया, ठीक है। हाँ यहाँ पर देखो, हाँ ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन, ठीक है, और इंजन का ये क्या होता है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन है। और इसको हम बुलाते हैं बॉक्सर या पैनकेक टाइप ऑफ इंजन सिस्टम। ये कहाँ पर भी यूज नहीं होता, ये सिर्फ एक क्लासिफिकेशन के लिए आपको मालूम होना जरूरी है। अभी इसका इंपॉर्टेंस क्यों है मालूम है क्या, इसके वजह से जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इंजन का नीचे आ जाता है, ऊपर नहीं रहता। जितना अपना इंजन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे होता है ना, तो क्या हो जाता है कि अपने को जो अपना व्हीकल है, तो व्हीकल के ऊपर जो फोर्सेस है ना, वो फोर्सेस अच्छे से डायनेमिकली बैलेंस हो जाते हैं, इसलिए इसको हम लोअर
सेंटर ऑफ ग्रेविटी चूज करते हैं। अभी होता है लॉन्जिट्यूडनल एंड ट्रैवर्स माउंटिंग। तो ये देखो, ये है ऊपर का फिगर लॉन्जिट्यूडनल का। लॉन्जिट्यूडनल में क्या है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर इंजन है अपना, ठीक है। इंजन को ट्रांसमिशन से ऐसे हमने कनेक्ट किया। कनेक्ट करने के बाद कैसे किया कि ये ऐसे इंजन इनलाइन है, ठीक है। इनलाइन इंजन को अगर हमने ऐसे कनेक्ट किया तो दिस वन इज बिकम द लॉन्जिट्यूडनल अरेंजमेंट। और यहाँ पर ऐसे इनलाइन इंजन है ना, इनको ऐसा परपेंडिकुलर ऐसा हमने अगर ट्रांसमिशन के साथ कनेक्ट किया तो दिस बिकम्स एन वी कैन से ट्रांसवर्स इंजन। ओके, दिस बिकम्स एन ट्रांसवर्स इंजन, ठीक है। अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द ये होता है पुश रॉड। ये पुश रॉड का क्या पर्पज होता है, ठीक है। पुश रॉड का पर्पज होता है ये अपना जो वॉल्स है ना, वॉल्स, ये वॉल्स को ओपन करने का जो काम करता है ये पुश रॉड करता है। ये पुश रॉड ऐसे ऊपर फोर्स अप्लाई करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये कॉम्प्रेशन, ये जो स्प्रिंग्स है ना, स्प्रिंग में कॉम्प्रेशन आके ये ऐसा नीचे इसको प्रेस करता है। फिर ये जो यहाँ से चार्ज ये आता है, ये नीचे पिस्टन है, पिस्टन के ऊपर ये चार्ज आता है, ठीक है। सो दिस वन इज द पुश रॉड। यहाँ पर देखो, दिस वन इज पुश रॉड। तो नेक्स्ट वन इज द कैम एंड फॉलोअर, ठीक है। अभी कैम एंड फॉलोअर का पर्पस क्या होता है, कैम, ये ऐसा कैम एंड फॉलोअर क्या होता है, जैसे यहाँ पे ये देखो, ये कैम है, ये कैम ऐसा रोटेट होता है। ये रोटेट कौन करता है, इसको एक बेल्ट पुली अरेंजमेंट होता है, जो अपना क्रैंकशाफ्ट होता है, क्रैंकशाफ्ट और कैम्पशाफ्ट एक दूसरे के साथ बेल्ट पुली अरेंजमेंट से एक दूसरे के साथ अरेंज किए जाते हैं। और ये अपना रोटेट होता है, ये रोटेट ऐसा रोटेट होता है कि ये जो वॉल्स है ना, ये वॉल्स ओपन एंड क्लोजिंग का ऑपरेशन ये कैम्प शाफ्ट रोटेशन से होता है। ये कैम्प शाफ्ट ऐसा सर्कुलर मोशन में नहीं होता। कैम्प जो होता है ना, कैम्प को ऐसा लोब होता है, ये एक जगह पे ऐसा लोब होता है, ये सर्कुल को ऐसा लोब होता है। ये लोब की वजह से क्या हो जाता है, ये ऐसा कैम्प अपना, ये कैम्प शाफ्ट जो है ना, ये अपने इसको क्या करता है, ऑपरेट करता है, ये वॉल्स को ऑपरेट करता है। ये जैसे घूमता है तो ये जब घूमेगा तो इसके ऊपर क्या करेगा, ये फॉलोअर होता है, ये फॉलोअर को क्या करेगा, पुश करेगा। ये फॉलोअर को जैसे ऊपर पुश करेगा तो ऐसे नीचे ऑपरेट हो जाएगा, नीचे जैसे आए तो ये वॉल ओपन हो जाएगा। फिर जैसे ये लोब यहाँ पे जाएगा तो ये फॉलोअर को ये ऑपरेट करेगा, फिर ये अपना नीचे जाएगा, फिर ये सिस्टम यहाँ से ओपन हो जाएगा। इस हिसाब से ये कैम्प शाफ्ट जो है ऑपरेट होता है। तो ये देखो, ये सिंगल ओवरहेड कैम्प शाफ्ट है, यहाँ पे एक सिंगल कैम हमने यूज किया है। तो यहाँ पे डबल ओवरहेड कैम्प शाफ्ट, यहाँ पे दो दो कैम अगर हमने यूज किए, मतलब हर एक जो वॉल है, हर एक जो वॉल है ना, उसके लिए एक सेपरेट कैम्प का अरेंजमेंट है। तो इसमें कोई फॉलोअर का अपने को जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज दिस वन इज द ड्यूअल ओवरहेड, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि डबल ओवरहेड हमने क्या किया है, कैम शाफ्ट इसमें यूज किया है। तो यहाँ पर देखिए, ये हमने इंजन का कटे हुए सेक्शन है, यहाँ पर ये अलग अलग मैकेनिज्म है। ये अपना कैम शाफ्ट है, ये कैम शाफ्ट ये पुली के अरेंजमेंट से ये अपना, सॉरी दिस इज क्रैंक शाफ्ट पुली अरेंजमेंट के साथ ये अपना ऊपर का जो मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म ये अपना ऑपरेट करेगा, ठीक है। देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल हम यूज कर सकते हैं इसमें। गैसोलीन यूज कर सकते हैं इंजन में, प्रोपेन यूज कर सकते हैं, डीजल यूज करते हैं, मेथनॉल, नेचुरल गैस। ओके, कूलिंग, कूलिंग एक जरूरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, अपने को ये कूलिंग प्रोवाइड करना चाहिए। कूलिंग के वजह से अपना क्या हो जाएगा, इंजन प्रॉपर टेम्परेचर पे काम करेगा। देन टाइप ऑफ इंडक्शन प्रेशर, जो एटमोस्फेरिक जो एयर होता है, जो एयर हम लेते हैं, एयर को लेने के बाद हम उसको फ्यूल के साथ मिक्स करते हैं। क्यों मिक्स करते हैं, क्योंकि एयर जरूरी होता है कंबशन प्रोसेस, एयर में होता है ऑक्सीजन, एंड ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर कंबशन। इसीलिए हम उसको फ्यूल को एयर के साथ मिक्स करके सिस्टम में डालते हैं। अभी ये एयर जो होता है, इसको हम एटमोस्फेरिक एयर ले सकते हैं या प्रेशराइज एयर ले सकते हैं। अगर हमने प्रेशराइज एयर लिया तो अपने इंजन का पावर आउटपुट बढ़ जाता है। तो वो प्रेशर प्रेशर एयर को देने के लिए, एटमोस्फेरिक एयर को प्रेशर देने के लिए एक कंप्रेसर यूज किया जाता है, सिंपल टाइप ऑफ। उस कंप्रेसर को हम बुलाते हैं टर्बो चार्जर और सुपर चार्जर।
जो टर्बो चार्जर होता है ना, वो टर्बो चार्जर हम एग्जॉस्ट जो गैसेस होते हैं ना, वो गैसेस का एनर्जी यूटिलाइज करके वो कंप्रेसर को घुमाते हैं, फिर वो हम एटमॉस्फेरिक एयर कंप्रेस करके हम वो इंजन में सेंड करते हैं। दूसरा होता है हम एक्सटर्नल एक्सटर्नल मतलब कंप्रेसर यूज करते हैं, जो इंजन में से पावर लेगा, फिर एयर को कंप्रेस करेगा और ये एयर अपने फ्यूल के साथ मिक्स होके इंजन में जाएगा, उसको हम बोलते हैं सुपर चार्जर। सो दिस वन इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन टर्बो चार्जर एंड सुपर चार्जर। नाउ नेक्स्ट, रोटरी इंजन। ये एक अलग किस्म का इंजन है, उसको इस इंजन को हम बुलाते हैं तो वैंकल इंजन। ये वैंकल इंजन है, और ये वैंकल इंजन में इसको हम बुलाते हैं रोटरी इंजन। इसमें ऐसे पोर्ट्स का यहाँ पे इंटेक पोर्ट, यहाँ पे एग्जॉस्ट पोर्ट्स, यहाँ पर है स्पार्क प्लग। तो ये क्या करते हैं, इसमें से ऐसे ऐसे कैविटीज बन जाती है। कैविटीज की वजह से क्या हो जाता है कि अपना जो फ्यूल है, वो फ्यूल क्या होता है, फ्यूल एयर मिक्सचर कॉम्प्रेस हो जाता है ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिकली वो उसका कंबशन हो जाता है, कंबशन होने के बाद अगेन इसको रोटरी मोशन इम्पार्ट करता है। हाँ, तो दिस वन इज अ वैंकल टाइप ऑफ इंजन। ये वैंकल टाइप ऑफ इंजन पहले था, अच्छा ऑपरेट करता था, लेकिन बाद में ये ऑब्सोल्यूट हो गया है, क्योंकि ये मैन्युफैक्चर करना काफी टीडियस है, इसमें काफी क्लोज मशीनिंग है, एंड इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू मैन्युफैक्चर दिस। दैट इज व्हाई in comparison to internal combustion engine, or we can say piston engines, these Wankel engines are nowhere used now. Now engine rotation direction, अभी यहाँ पर देखो कि ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, दैट इज द इंजन रोटेशन डायरेक्शन। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है SAE इज सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स। तो उनके जो स्टैंडर्ड्स है, वो स्टैंडर्ड्स अपने को क्या बताए, फॉर ऑटोमोटिव इंजन रोटेशन इज काउंटर क्लॉकवाइज एज व्यूज फ्रॉम द फ्लाईव्हील एंड। ये अपना फ्लाईव्हील एंड है, ये फ्लाईव्हील एंड से अगर आपने देखा तो ये काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन से ये घूमता है, ठीक है। और अगर एज व्यू फ्रॉम फ्लाईव्हील एंड, एंड क्लॉकवाइज व्हेन व्यूड फ्रॉम द फ्रंट। जो फ्रंट है, ये इंजन का ये फ्रंट है, फ्रंट से अगर देखा तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, ठीक है। सो दिस इज द वी कैन से स्टैंडर्ड इंजन रोटेशन डायरेक्शन, ओके। The flywheel end of the engine is the end to which power is applied to drive the vehicle, okay, and is called as a principal end. ये जो फ्लाईव्हील है ना, ये फ्लाईव्हील के ऊपर हम क्या करते हैं, बैटरी से इसको क्रैंक करते हैं। ये क्रैंक होने के बाद अपना इंजन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। सो दिस वन इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एंड। नॉन प्रिंसिपल एंड, जो फ्लाईव्हील के अपोजिट का एंड है, उसको हम बोलते हैं नॉन प्रिंसिपल एंड। नाउ वेयर डज एन इंजन स्टॉप। अब इंजन स्टॉप कैसे होता है, चालू करना मालूम है आपको, स्टॉप कैसे हो जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका इंटरव्यू में हम क्वेश्चन पूछते हैं, इंजन स्टॉप कैसे करने का। व्हेन द इग्निशन सिस्टम इज टर्न ऑफ, द फायरिंग ऑफ द स्पार्क प्लग इज स्टॉप। हम क्या करते हैं, जब इग्निशन ऑफ कर देते हैं ना, तब जो स्पार्क प्लग है, स्पार्क प्लग को जो पावर जाता है ना, वो स्पार्क प्लग का पावर जाना स्टॉप हो जाता है, ठीक है। एंड इंजन विल रोटेट अंटिल इट स्टॉप्स ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रोटेटिंग पार्ट्स। तो इंजन क्या होता है, स्टॉप हो जाता है। कब स्टॉप हो जाता है, अगर इग्निशन सिस्टम स्टॉप किया, अगर हमने स्पार्क प्लग का स्टॉप किया, तो क्या हो जाता है, फ्यूल बर्न होना स्टॉप हो जाता है। फ्यूल जैसे बर्न होना स्टॉप हो जाता है, तो क्या हो जाता है, इंजन को पावर स्ट्रोक नहीं मिलता है, और पावर स्ट्रोक नहीं मिलने की वजह से वो ऑटोमेटिकली उसका स्पीड स्लो स्लो होके वो स्टॉप हो जाता है। उसको हम बोलते हैं इनर्शिया इफेक्ट। इस हिसाब से इंजन अपना स्टॉप हो जाता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको मालूम होना चाहिए। इंजन को स्टॉप कैसे करता है, उसके पीछे क्या मैकेनिज्म है। नाउ दिस इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, बोर, इसको हम बोलते हैं इंजन कंस्ट्रक्शन। ये अब हम क्या करेंगे, हम अभी ये नेक्स्ट लेक्चर में आपका ये कंटिन्यू करेंगे। सो टिल नाउ I will stop this lecture today. So tomorrow we will meet in for this next important part of the engine construction. So thank you. If you have any doubt, you please message me on my WhatsApp number.